الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام، السلام علیکم. آج آسان عربی گرامر کا ہمارا لیکچر نمبر 38 ہے. اس میں ہم جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کریں گے. جملہ فعلیہ کا درس نمبر 19 ہے. جملہ فعلیہ میں ہمارا دو تین لیکچر سے دروس سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں تبدیلیاں آ جاتی ہے. کچھ الفاظ اگر اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ان کے صیغوں میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. اس کے سلسلے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل مضارع جو ہے اپنی شکلیں جو ہے وہ تبدیل کر لیتا ہے. ترجمہ تو وہی رہے گا مگر اپنی شکلیں تبدیل کرتا ہے. شکلیں تبدیل کرنے کی صورت میں فعل مضارع جو ہے اس میں 4 قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے. فعل مضارع اخف بن سکتا ہے، فعل مضارع خفیف بن سکتا ہے، فعل مضارع ثقیل بن سکتا ہے، اور فعل مضارع اثقل بن سکتا ہے. ابھی تک ہم نے فعل مضارع اخف کیسے بنتا ہے اس کے بارے میں پڑھا، اور فعل مضارع خفیف کیسے بنتا ہے اس کے بارے میں پڑھا. فعل مضارع خفیف بننے کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ فعل مضارع کے جو بھی صیغے ہیں ان میں آپ ابتدا میں ان سے پہلے یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف پائیں، ان الفاظ میں سے کوئی لفظ آپ دیکھیں مضارع سے پہلے، تو اس وقت خفیف بن جاتا ہے. اور خفیف کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا گروپ نمبر 1 ہے، یعنی یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو کے جو 5 ہمارے پاس صیغے ہیں، ان میں سے لام کلمے کا جو پیش ہے وہ ہٹ کر زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جو گروپ نمبر 2 ہے جس میں آخر میں نون آتا ہے، یفعلان، تفعلان، 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 یفعلون، تفعلون، تفعلین، اس میں آخر میں نون گر جاتا ہے. اور جو تیسرا گروپ ہے یفعلنا اور تفعلنا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی. اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر فعل مضارع اخف ہو جاتا ہے، اخف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ فعل مضارع کے ابتدا میں ان 5 الفاظ میں سے کوئی لفظ آئے، جس میں ہم نے ابھی تک لم، لما اور ان کے بارے میں پڑھا. لا اور لی اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اخف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو پہلا گروپ ہے، یعنی یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو کا گروپ، ان میں آپ کو آخر میں جو لام کلمہ ہے اس میں پیش کے بجائے اس کو ساکن کرنا ہے. اس کو ہم حالت جازمہ بھی کہتے ہیں. جیسے فعل مضارع خفیف کو حالت ناصبہ بھی کہتے ہیں کیونکہ نصبی حالت میں آ جاتا ہے. اسی طرح فعل مضارع اخف کو ہم فعل مضارع حالت جازمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ آخر میں جزم آ جاتا ہے. اس پہلے گروپ میں. سیکنڈ گروپ میں فعل مضارع خفیف کی طرح نون ہٹ جاتا ہے. اور تیسرا گروپ جو ہے یفعلنا اور تفعلنا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. آپ کے سامنے گردان میں نے پچھلے درس میں اس کے بارے میں تفسیر دی تھی. چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع اخف اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ اگر آپ فعل مضارع سے پہلے کسی بھی صیغے سے پہلے ان 5 حروف میں سے کوئی حرف دیکھیں، جس میں ہم نے لم، لما اور ان کے بارے میں پڑھا. ان کے بارے میں ہم نے یہ بھی آخر میں پڑھا تھا کہ ان کو ان شرطیہ بھی کہتے ہیں. اور ان شرطیہ جو ہوتا ہے جب بھی فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو شرط کا ایک جواب بھی ہوتا ہے جس کو جوابی شرط کہتے ہیں. اور جوابی شرط جو ہے وہ بھی شرطیہ کی وجہ سے ہی اس کے فعل میں بھی مطلب وہ بھی جازمہ بنتا ہے، اس میں بھی وہی تبدیلی آ جاتی ہے جو ان کے بعد شرطیہ میں، اس فعل شرطیہ میں یا ان شرطیہ کے بعد جو فعل آتا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو نہ صرف وہ بلکہ اس کے بعد جو اس کا جواب ہوگا اس میں بھی وہ تبدیلی واضح ہوگی، جو کہ ہم نے پچھلے درس میں دیکھا. آج کا جو درس ہے وہ ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ اگر آپ نے دیکھا فعل مضارع سے پہلے لا لکھا ہوا. اب لا جو ہے، جیسے عربی میں آپ یاد رکھیے گا، عربی میں جو الفاظ ہے نا
वो मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होते हैं। जैसे वाव हमारे पास है, वाव कसमिया भी इस्तेमाल होता है। अगर आपको कसम खाना है तो वाव भी आप इब्तिदा में ला सकते। जैसे कि कोई कहेगा वल्लाही, वल्लाही का मतलब है अल्लाह की कसम। और वाव जो है हर्फ अतफ भी है, ये बीच में भी आ जाता है, मातूफ और मातूफ इलैह को आपस में मिलाता भी है। इसी तरह और भी किस्म के वाव है। इसी तरह हमारे पास ला जो है, लाम लाम और अलिफ के साथ, लाम अलिफ जबर ला, इसके अलग अलग हालतें हैं। ये अक्सर और बेशतर नहीं के इस्तेमाल के लिए आता है। ला नाहिया इसको कहते हैं। और लाहे नफी जिन्स भी एक हमारे पास ला है। मगर यहाँ पर जिस ला का तज़किरा किया जाता है इसको कहते हैं ला नहीं। ला नहीं, ला नहीं का मतलब क्या होता है? किसी शख्स को किसी काम से मना करने के लिए जो ला इस्तेमाल किया जाता है उसको लाइन नहीं इस्तेमाल कहते हैं। ठीक है, तो जो कि मुजारा को अखफ कर देता है। तो अगर ये लाइन नहीं मुजारा से इब्तिदा में आ जाए तो लाइन नहीं के इस्तेमाल से मुजारा अखफ हो जाता है, उसमें अखफ की तब्दीली आ जाती है, और उस फेल को उस वक्त फेल नहीं भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक जुमले फेलिया है, बल्कि एक फेल है, मुजारा फेल, यफ़अलु। यफ़अलु का तर्जुमा है वो करता है या वो करेगा। आप अगर ला लगाएंगे इब्तिदा में तो बनेगा ला यफ़अलु, वो नहीं करता या वो नहीं करेगा। इसको लाई नफी कहते हैं, लफी, नफी। ठीक है, नफी ये अलग है ला। अगर लाई नफी के बजाय लाई नहीं डालेंगे तो इसका इसका तर्जुमा क्या आएगा? ला यफ़अल। पहले तो यफ़अलु तब्दील हो जाएगा, यफ़अल बनेगा, अकफ करेंगे, और तर्जुमा आएगा वो ना करे, वो ना करे। अब देखिए फर्क क्या है। ला यफ़अलु का तर्जुमा है वो नहीं करता या वो नहीं करेगा, जबकि ला यफ़अल का तर्जुमा है वो ना करे। ठीक है, जैसे अगर हम कहेंगे ला यफ़अल, वो ना करे, या ला तफ़अल अगर आगे बढ़ेंगे तो तू मत कर, एक तरह से इसमें हुक्म है। लाई नहीं का तर्जुमा ये आता है कि किसी शख्स को अगर आप मना करने के लिए कोई चीज कहते हैं ना हुक्मन, उसको लाई नहीं कहते हैं। एक होता है लाई नफी, नफी का तर्जुमा है जिसमें नेगेटिव डेवलप माने हो जाता है। दूसरा लाई नहीं का तर्जुमा होता है कि इसमें नहीं का तो तर्जुमा है मगर हुक्मन है, ये एक तरह से कमांड दिया जाता है, तू ना कर, वो ना कर। ठीक है, ला तफअल वो ना करे, ला ला यफअल वो ना करे, ला तफअल तू मत कर, इसको लाई नहीं कहते। इस चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम तर्जुमा बाद में इंशाल्लाह करेंगे एडवांस क्लासेस में, उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि जो ला इस्तेमाल हुआ है, इस ला में इस जुमले का तर्जुमा क्या आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अरबी का जो हमारे पास जो कुरान मजीद का ट्रांसलेशन है वो 100%, यानी कुरान शरीफ को आप 100% ट्रांसलेट नहीं कर सकते किसी दूसरी जुबान में, जब तक आपको बेसिक इल्म पता ना हो। तो अभी तक हमने लाई नफी पढ़ा था, आज हमने लाई नहीं पढ़ा। और लाई नफी और नहीं में क्या फर्क है? लाई नफी में जो ये फेल होता है, जुमले फेल यानी मुजारा का जो सेगा होता है वो वही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। जैसे ला यफ़अलु, यफ़अलु फेल था, ला यफ़अलु तर्जुमा आएगा वो नहीं करता, वो नहीं करेगा। मगर अगर आपको ला नहीं बनाना है तो उसको अखफ करना पड़ेगा, आप करेंगे ला यफ़अल, पेश के बजाय सुकून आएगा तो तर्जुमा आएगा वो ना करे, ला तफअल तू मत कर। इतना क्लियर हो गया? यहां तक मैं आपसे सुनना चाहता हूं, ये क्लियर हो गया साहब, मुनीर साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यानी या ख्याल रखिएगा लाई नफी और लाई नहीं में क्या फर्क है, और ये आपको यानी रूल्स बताएंगे कि ये नफी है या नहीं। अब हम इसकी कुछ मिसालें देंगे कुरान अजीम से, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल हुआ है और रूल्स क्या तब्दील हो गए। सूरह आरफ की आयत है, और बल्कि ये दुआ है जो हम अक्सर करते हैं, करना भी है। सूरह आराफ आयत नंबर 47 अल्लाह फरमाता है आप एक दुआ किया करें, रब्बना, ए हमारे रब, ए हमारे रब। ये हमारे पास 14 सेगा है जिसको हम कहते हैं जमा मुतकल्लिम का सेगा। रब्बना, ए हमारे रब, ला तजअलना, ये असल में था ला तजअलु, मगर तजअलु तजअल बन गया, लाम साकिन बन गया क्योंकि ला आ गया। ला तजअलना
न बना हमें, ला तज अलना, न बना हमें, एक तरह से दुआया कलमा हमारे पास, अल्लाह से कह रहे कि ए अल्लाह हमें न बना। ठीक है। अब ला ये जो है ये ला नफी नहीं बल्कि ला नहीं है, और इस फेल को हम फेल नहीं कहेंगे। रब्बना ला तजअलना, ए हमारे रब, न बना हमें, मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, जालिम कौमों का साथी, यानी जालिम कौम का साथी हमें न बनाइएगा। अब देखिए कितना तर्जुमा, कैसे तर्जुमा बन जाता है, और अब आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें हम एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अल्लाह तबारक ताला से, हुक्म तो नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ ये चीज मद्देनजर रखा जाता है कि कौन किसको क्या कह रहा है। अल्लाह तबारक ताला हमें हुक्म दे सकता है, और हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अक्सर जो हम दुआ करते हैं ना, रब्बना ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, ये वही है, ए हमारे रब हमें न बना, इन्हें न बना हमें जालिम कौम का साथी। सूरह आराफ की आयत ये है। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो ला इस्तेमाल हुआ है, ये ला नफी नहीं, ला नहीं है। और ये कैसे पता चल गया? क्योंकि तज आलू जो है वो तज अल में तब्दील हो गया, इसमें अखफ हो गया। इसी तरह हमारे पास है रा, फा और आइन, मादे के 3 हरूफ, बाबी फाला पे डालिए, फाला यफलू से बनेगा रफा यरफाऊ, यरफाऊ का गर्दान करें, तरफाऊना इसको अखफ करें तो तरफाऊना, ये दूसरा हमारे पास ग्रुप है, इसमें नून हट जाएगा, और वाव चूंकि साकिन है तो अलिफ साथ में आएगा। तरफाऊ अखफ हमने कर दिया। सूरह हुजरात आयत नंबर 2 अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, ला तरफाऊ मत बुलंद करो। अब देखिए यहां पर हुक्म है, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हुक्म है, ला तरफाऊ अपनी आवाज बुलंद मत करो, अस्वातकुम यानी अपनी आवाज को बुलंद मत करो, फौका सौतिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊपर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आवाज आपके सामने आए उस मजलिस में आपकी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अदब सिखाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सहाबा बात करते थे उनको हुक्म दिया गया कि आप लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज को ऊंची न करें। अभी भी जब आप मदीना जाते हैं, रोज़े पाक के ऊपर ये आयत लिखी हुई है, ये क्योंकि हुक्म है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि अगर ऐसा नहीं छोड़ोगे, यानी अगर ऐसे ही करोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज बुलंद करोगे, तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफाऊ, तरफाऊना तरफाऊ बन गया, क्योंकि ला की वजह से, ला नहीं की वजह से तरफाऊना में अखफ हो गया, ये तरफाऊ बन गया। इसमें तर्जुमा नहीं का आ गया, इसको फेल नहीं कहेंगे। अस्वातकुम, तरफाऊ फेल फाइल, अस्वातकुम मरफ, इसका ये है मफूल, फौका सौतिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊपर, सूरह हुजुरात की आयत। एक और मिसाल, काफरा बा, बाबिसीन पे डालिए, करीबा यकरबू, यकरबू को अगर आप गर्दान करेंगे, इसमें एक जुमला आता है तकरबानी, है ना, तकरबानी, इसको अखफ कीजिए तो तकरबानी तकरबा बनेगा, नून हट जाएगा। इस तरह क्या फाव नून, बाबी नून पे डालिए, कवाना बनेगा काना, और इसका जब आप मुजारा करेंगे तो यकवुनु यकूनु बनेगा, और तकूनु का अगर आप गर्दान करेंगे तकूनानी, तकूनानी को तखफ की अखफ कीजिए, बनेगा तकूना। अब ये चीजें जो मैं भी बता रहा हूँ ना, तेज तेज ये चीजें माशाल्लाह हम काफी ज्यादा लेक्चर्स दुरूस से हम जान रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा तेज तेज जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम एडवांस क्लास लेंगे, एडवांस क्लासेस में अब ये चीजें अब आपको पता होनी चाहिए, हमने कौन सा रूल क्या फॉलो किया। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसी को हम सर्फ कहते हैं। नहीं तो हम माशाल्लाह इन्हें नहव तो हमने पढ़ लिया, अभी हम सर्फ पढ़ रहे हैं, सर्फ में ये चीजें पता होनी चाहिए, कौन से सेगे में हमने क्या किया। अब ये तकरबा और तकूना जो है ये इस्तेमाल हुआ है सूरतुल बकरा आयत नंबर 35 में, यानी आप देखिए कैसे हम अल्फाज को लेके फिर कुरान मजीद की आयत से इसकी मिसाल देते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया आयत नंबर 35 में, ला तकरबा मत करीब जाना तुम दोनों। तकरबा जो है ये असल में मुसन्ना यानी ड्यूअल का सेगा है, आप दोनों करीब मत जाना, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने जब हजरत आदम हजरत हवा अलैहिमुस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया, फिर कहा ला तकरबा मत करीब जाना। यहाँ पर देखिए ना, अल्लाह ने हुक्म दिया, कमांड किया कि तुम करीब मत जाना। हादिहि शजरता, तुम दोनों करीब मत जाना इस दरख्त के, हादिहि शजरा यानी हादिहि
शजरा जो है ये मुअन्नस है, तो हादा के बजाय हादी इस्तेमाल हुआ है, और ये कहा गया है कि इस दरख्त के करीब मत जाना। अब ये जो है इन तकरबाहा, ये जो इन तकरबाहा ये हज़फ है, ये कुरान मजीद का लफ्ज नहीं है, मगर मतलब तर्जुमे में ये आता है, इन्हें समझना चाहिए कि अगर तुम करीब जाओगे तो, ठीक है ना, इन बात, तो क्या होगा, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, फतकूना, फतकूना, तकूना कहते हैं कि तुम दोनों हो जाओगे मिनज़्ज़ालिमीन, जालिमों में से। ये जो ब्रैकेट में इन तकरबाहा है ना, ये हज़फ है, यानी इसका मतलब होता है कि जब आपको हुक्म दिया गया कि इस दरख्त के करीब मत जाओ, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट कहा कि तुम दो, यानी तो तुम दोनों हो जाओगे जालिमों में, तो इसका तो ये जवाब है, मगर इसका शर्त क्या है, वो शर्त लिखा नहीं गया है, वो हाज़िफ है। मगर तर्जुमा इस तरह आएगी कि अगर तुम दोनों करीब जाओगे तो तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे, ठीक है। तो ये कुरान का लफ्ज नहीं इन तकरबाहा, मगर ये हज़फ है, इन्हें तर्जुमे में आपको पता होना चाहिए। इसका जवाब तो है, मगर इसका जो शर्त है, शर्त वो हज़फ है, वो लिखा नहीं गया है, वो खुद ब खुद इसका आपको माने समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि तकरबा और तकूना कैसे इस्तेमाल हुआ है सूरतुल बकरा की आयत में। एक और हमारे पास है काफ तालाम, ये मादे की तीन बाब नसरा पे डालिए, कतला यकतुलु और तकतुलूना, जब आप इसका गर्दान करेंगे अखफ करिए तो तकतुलू बनेगा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31 अल्लाह फरमाता है वला तकतुलू, और मत कत्ल करो तुम, औलादकुम, अपनी औलाद को, यानी मत कत्ल करो, औलादकुम, अपनी औलाद को, खशियत इमलाक, तंग दस्ती के खौफ से। तो यहाँ पर ये जो बहुत सारे फैमिली प्लानिंग लोग हैं कि भाई अगर बच्चे पैदा होंगे तो, और फिर खाने का क्या होगा, किस तरह होगा, अल्लाह ने इसका वादा लिया है, ला वला, और मत, तकतुलु, कत्ल करो तुम, सब यानी जमा का सेगा है, औलादकुम, तुम लोग अपनी औलाद को, खशियत इमलाक, इस वजह से कि तंग दस्ती का खौफ है, तंग दस्ती, गुर्बत आएगी, क्या करेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अल्लाह फरमाता है नहनु नरजुकुहुम, हम ही रिजिक देते हैं उन्हें, व इयाकुम, और तुम्हें भी। अब देखिए कुरान मजीद का एक अजीम एक मौजज़ा है, यहाँ तो लॉजिकली ये होना चाहिए कि हम आपको रिजिक देते हैं उनको भी देंगे ना, यहाँ पर कहा गया है कि हम उन्हें रिजिक देते हैं, उन्हें, पहले उनका जिक्र है जो दुनिया में आए नहीं, व इयाकुम, और तुम्हें भी देते। यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक ताला ने रिजिक जो है मामला वो अपने ऊपर रखा है, वो उनको रिजिक दे चुका है। ये नहीं पता कि कौन सा बंदा दुनिया में आने की वजह से रिजिक में और इजाफा हो सकता है। जैसे मिसाल के तो बहुत सारे ऐसे साइंसदान निकले हैं जो जिनकी वजह से ऐसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हुए कि जिसकी वजह से रिजिक में इजाफा हो गया, या न्यू डिस्कवरीज हुए। अब अगर आप उनको देखेंगे वो चौथी औलाद, पांचवी औलाद, छठी औलाद भी है, मतलब पहले पहले तो बहुत औलादें होती थी, तो अगर वो दुनिया में ना आते तो रिजिक के नए जखायर कहाँ से निकलते। खैर ये एक लंबा टॉपिक है, यहाँ पर हम ग्रामर पे वापस आएंगे कि अल्लाह ने फरमाया नहनु, यानी नरजुकुहुम, हम का इस्तेमाल हुआ है, हम ही रिजिक देते हैं। और आपको पता है कि जब जुमले फेलिया को जुमला इस्मिया में तब्दील करते हैं तो उसमें जोर डेवलप होता है। नहनु यानी हम ही, यानी कि हम रिजिक देते हैं, हम ही रिजिक देते हैं, नरजुकुहुम, उन्हें भी, व इयाकुम, और तुम्हें भी। इस तरह हमारे पास है दाल आइन और वाह बाब नसरा पे डालिए दावा, इसमें तब्दीली आएगी, दावा दा बनेगा, और यदउ बनेगा, यदउ, यदउ का गर्दान करे, तदऊना, यानी पुकारना, और अखफ कीजिए तो बनेगा तदउ। सूरह जिन आयत नंबर 18 अल्लाह फरमाते हैं व अन्नल मसाजिदा, और ये कि बेशक मस्जिदें जो है लिल्लाह, अल्लाह की है, और यकीन, इन्हें बेशक, अन्ना का तर्जुमा ये यकीनन बेशक, और ये कि बेशक मस्जिदें जो है ये अल्लाह के घर है। फला, पस मत, तदउ, पुकारो, यानी पस मत पुकारो तुम, मअल्लाहि अहदन, अल्लाह के सिवा किसी और को। यानी ये जो मस्जिदें हैं ना ये अल्लाह के घर है, आप किसी और को मत पुकारो। जब अल्लाह का घर है तो अजीब लगेगा ना, किसी के घर आप जा रहे हो और साहिब खाना को आवाज देने के बजाय किसी और को आवाज दे रहे हो, तो साहिब खाना जो है, जो मालिक है घर का, वो कितना बुरा मानेगा। और ये भी आप याद रखिएगा कि अल्लाह ने कहा कि पूरी जमीन जो है ये मस्जिद है, इसका मतलब कि मस्जिद यहाँ स्पेशल कोई चीज नहीं, बल्कि कहा गया है कि पूरी जमीन ये अल्लाह की मस्जिद है, और इन्हें सजदा गाह है अल्लाह की,
اس के अलावा किसी और को मत पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी और को मत पुकारो। यहाँ पे भी जो ला इस्तेमाल हुआ है ये है ला, ये नहीं। और ये जो तदउ है ये फेल नहीं है, इसमें हुक्म दिया गया है और इसमें अखफ हुआ है। इसी तरह हमारे पास है दाद राबा, बाब दाद पे डालिए दरबा यदरिबू तदरिबूना, जब आप इसका गर्दान करेंगे अखफ करेंगे, तदरिबू नून हट गया और वाव साकिन के साथ अलिफ आ गया। सूरह नहल आयत नंबर 74 अल्लाह फरमाता है फला पस मत तदरिबू बयान करो तुम लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें। यानी जिस तरह आम लोगों आम चीजों के लिए तुम मिसालें बयान कर, तो अल्लाह के लिए कोई मिसाल बयान ना करो, क्योंकि लाइसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसा कोई नहीं। यानी क्रिएटर अल्लाह जो है उस जैसा कोई है नहीं, मिसालें आप दे नहीं सकते। काफ नून और तो, काफ नून और तो बाबिसीन पे इसको डालिए, बनेगा कानिता यकनतु। इसका आप वो गर्दान करेंगे तो तकनतूना, इसका अखफ करेंगे बनेगा तकनतू। सूरह जुमर आयत नंबर 53 बेहतरीन आयत। और चूंकि मुनासिबत है हमारे इस आज के दिनों के मुनासिबत से रमजान गुजर रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मत मायूस हो जाओ तुम सब अल्लाह की रहमत से। यहाँ पे भी ला आया है, लाई नहीं, और तकनतू जो है फेल नहीं है। इसमें भी इनकार का पहलू है, मगर साथ साथ में किस चीज से, मतलब कमांडिंग तरीके से, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म है ला तकनतू, मत मायूस हो जाओ। असल में तकनतू ना था, तकनतू कैसे हुआ, अखफ हुआ ला की वजह से, लाई नहीं की वजह से। मिर रहमतिल्लाह, तुम सब अल्लाह की रहमत से। इन अल्लाह, यकीनन अल्लाह जो है, यगफिरु बख्श देगा, अज़्ज़ुनूब जमीआ, सारे गुनाह। यानी अल्लाह बख्श देगा सारे गुनाह, अल्लाह हमारे गुनाह भी बख्श दे। ये बहुत ही एक इत्मीनान वाली आयत है कि जब आदमी गुनाह करता है और गुनाह में इतना गिर हो जाता है, शैतान कभी आता है कि बस तुम्हारा तो आप केस खत्म हो गया, तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ, यकीनन अल्लाह बख्श देगा वो सारे गुनाह। काफ हारा बाबी फ़ाला पे बनेगा कहरा यकहरू, और तकहरू, तकहरू को अखफ कीजिए तो तकहर बनेगा। नून हारा बाबी फ़ाला पे नहरा यनहरू, इसका गर्दान करेंगे तो तनहरू, अखफ कीजिए तो तनहर। सूरत दुहा आयत नंबर 9 और 10 अल्लाह फरमाते हैं फ़अम्मल यतीम फला तकहर, पस रहा यतीम तो मत सख्ती कर उस पर। यानी यहाँ पे भी आपने देखा ला तकहर, यानी उस पर मत सख्ती कीजिए, यतीम जो है उस पर सख्ती करने से मना है। व अम्मा साइला, और रहा मांगने वाला, फला तनहर, तो मत जड़ो, जड़ को उसे। यानी उसको अगर आपके पास माल नहीं, वो आपसे मांग रहा है कोई चीज, आप देने की सकत नहीं रखते, फिर भी एहसन तरीके से उसको मना कीजिए, उसको झड़कने की, उसको तेजी से डांटने की, इससे मना किया गया है। यहाँ दोनों में आपने देखा ला नहीं इस्तेमाल हुआ है, और ये तकहर और तनहर जो है ये फेल नहीं है। इसी तरह हा मीम लाम बाब दाद पे डालिए हमला यहमिलु, इसका गर्दान करेंगे तहमिलु, अखफ होगा तहमिल। सूरतुल बकरा आयत नंबर 286 अल्लाह फरमाते हैं रब्बना, ये असल में हम दुआ करते हैं रब्बना, इन्हें मोमिनों को कहा गया कि तुम दुआ करना रब्बना, ए हमारे रब, वला तहमिल, और न डाल हम पर, अलैना, न डाल हम पर, इसरन कमा हमलतहु, ऐसा बोझ जिस तरह तूने डाला, कमल कमा हमलतहु, जिस तरह तूने डाला, अलल्लदीना, यानी वो बोझ उन लोगों पर, मिन कबलना, जो थे हमसे पहले। यानी अल्लाह तबारक ताला से कभी भी कोई मुसीबत नहीं मांगनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं फिर मैं सब्र करूंगा, देखिए अल्लाह से कोई भी मुसीबत मांगनी नहीं चाहिए, ये इसको मना किया गया। बल्कि इस आयत में तो कहा गया है कि अल्लाह से आप दुआ करें कि हम पे बोझ ना डाल। पुराने जमाने में बहुत सारा बोझ था, हम पे उतना बोझ नहीं डाल, ठीक है, जो हम उठा ना सके। सूरतुल बकरा आयत नंबर 286। और इसमें तहमिल जो है ये ला की वजह से, और ये ला जो है ला, ये नफी, ला ये नहीं है और ये फेले नहीं है। हमजा कैफ और लाम नून पे डालिए, बनेगा अकला याकुलु ताकुलूना, गर्दान के साथ, और अखफ होगा तो ताकुलू। आयत नंबर 188 अल बकरा, अल्लाह फरमाते हैं वला ताकुलू, और मत खाओ तुम, अमवालकुम, यानी मत खाओ तुम अपने माल, बाइनकुम बिल बातिल, आपस में नाजायज तरीके से। यानी
हम देखिए तिजारत में भी हम एक दूसरे का तो माल ही खाते हैं ना, मगर वो जायज तरीका है। आपने कोई चीज लाई, उसको मार्केट में कम चीज लाई, उसके बाद किसी और को ज्यादा कीमत में उसको बेच दिया, तो जायज तरीका है। नाजायज तरीका ये होता है कि किसी पे कब्जा करना, किसी की जगह को कब्जा करना, गुनाह करके कब्जा करना, और झूठ बोल के किसी से माल हड़पना, किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करना, किसी के माल को कब्जा करना है। किसी को आपने जक़ात दिया, या जक़ात तो खैर नहीं, किसी को आपने कोई पैसा दिया और आपने उसका हड़प कर दिया पैसा, ये इस चीज से अल्लाह तबारक तआला ने हमें मना किया है कि वला ताकुलू, और ला ताकुलू, ला नहीं, ताकुलू फेल नहीं, अमवालकुम, आप माल न खाओ आपस में, बैनकुम बिल बातिल, आपस में बातिल तरीके से, गुनाह के तरीके से। अब एक और मिसाल है ला, इन्हें एक और मिसाल देंगे, उसके बाद ली पे आएंगे हम। लाम बा और सीन, बा जो दराबा पे लबसा यलबिसु बनेगा, तलबिसूना गर्दान के बाद अखफ कीजिए तो तलबिसु, कैफ तामीम बाबी नून पे कतमा यकतुमु बनेगा। इसको अगर हम गर्दान करेंगे तकतुमुना, अखफ के बाद तकतुमु। सूरह बकरा आयत नंबर 42 अल्लाह फरमाते हैं वला तलबिसु, और मत मिला दिया करो, तलबिसु मिलाना है, और मत मिला दिया करो अल हक़ बिल बातिल, सच्चाई को झूठ के साथ। यानी सच्चाई अलग है, झूठ अलग है, इनको आपस में मत मिलाओ। व तक्तुमुल हक़, और मत छुपाओ हक को, यानी सच्चाई को, व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। यहाँ तलबिसु तक्तुमु दोनों जगह पे ला की वजह से ये हुआ है, और व तक्तुमु जो इससे पहले तो ला है नहीं, मगर ये जो वाव है ना, ये वाव अतफ है, ये मातूफ को मातूफ अलैह के साथ मिलाता है। तो तलबिसु पे जो असर हुआ वो तक्तुमु पे भी असर होगा। इंशाल्लाह ये चीजें आप पढ़ेंगे कि वाव जब यानी बीच में आता है, जिसको वाव अतफ भी हम कहते हैं, वो मातूफ को मातूफ अलैह के साथ मिला देता है, और दोनों में सिमिलर चेंजेस आ जाते हैं। आखिर में हमारे पास है लाम ज़ेर ली, अगर ये भी इब्तिदा में आए तो उस वक्त भी हमारे पास अखफ होता है। इस लाम को लाम अमर कहते हैं, अमर, लाम अमर ली, इसका तर्जुमा है चाहिए, है ना, चाहिए, चाहिए। मुजारा मजहूल के तीनों सेगों, यानी गायब, हाजिर और मुतकल्लिम, मजहूल आप याद रखिएगा। और मुजारा मारूफ में सिर्फ सेगे गायब और मुतकल्लिम से किसी ख्वाहिश के इजहार के लिए फेल मुजारा से पहले लाम अमर लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप मजहूल की बात करेंगे तो चाहे गायब, हाजिर, बराबर 14 के 14 सेगों में ये इस्तेमाल होता है। अगर मुजारा मारूफ की बात करेंगे तो सिर्फ हमारे पास 6 + 2 यानी 8 सेगों में उसमें से गायब और मुतकल्लिम। आपके सामने तो मैं हूँ, यानी आप जो सेकंड पर्सन है उनके लिए ये मुजारा हाजिर में इस्तेमाल नहीं होता। इस लाम को लाम अमर कहते हैं, लाम ज़ेर ली के साथ इस्तेमाल होता है, अखफ कर देता है इसको। तो यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर आपके सामने है लियफ़अल, अगर यफ़अलु पहले था, लाम ज़ेर ली लगाइए, लाम अमर लगाइए, तो बनेगा लियफ़अल, उसे करना चाहिए। लियफ़अलु, उन्हें करना चाहिए। ये जो चाहिए का तर्जुमा है ना, एक तरह से अमर है, उन्हें करना चाहिए। मिसाल काफ रहा हमजा बाबी फ़ाला पे डालिए तो बनेगा क़रा यक़राउ। इसका आप आगे बढ़ेंगे, नक़राउ अखफ कीजिए तो नक़रा बनेगा। इसी तरह लियक़रा, उसे पढ़ना चाहिए, लिनक़रा, हमें पढ़ना चाहिए। आइन बा दाल बाबी नून बाबी कैफ पे डालिए अबदा या अबुदा, याबुदु बंदगी करना, याबुदूना इसको अखफ कीजिए तो बनेगा याबुदू। और इसी तरह लियाबुदू यानी उन्हें बंदगी करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज आप सवाल पूछ सकते हैं कि लाम अमर और लाम काई में क्या फर्क है। ठीक है, देखिए लाम अमर से पहले अगर वाव या फा आ जाए तो वो साकिन हो जाता है, जबकि लाम काई पे बदस्तूर जेर रहती है। लाम काई भी लाम जेर ली के साथ ही आता है, इसको लाम काई कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अल्फाज एक जैसे होते हैं, मगर उनका तर्जुमा उनका अलग अलग होता है, उनका इस्तेमाल भी अलग होता है, तो रूल्स आपको याद रखने हैं। लाम ज़ेरली बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब एक लाम ज़ेरली को लाम काई कहते हैं और दूसरा लाम को लाम अमर कहते हैं। जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये लाम अमर है। फर्क क्या है कि अगर लाम अमर से पहले, लाम अमर से पहले अगर वाव या अलिफ आ जाए तो वो साकिन हो जाता है,
اور اگر لام کائی پر یعنی لام کائی جبکہ بدستور اس پہ زیر رہتی ہے، مثال کے طور پر وَلِيَعْبُدُوا واو آ گیا پہلے، لیعبدو پہ لام زیر لی برقرار رہ گیا تو اس کو لام کائی کہیں گے. اس کا ترجمہ آئے گا تاکہ، کائی کا مطلب ہوتا ہے نا تاکہ، تاکہ، اور تاکہ وہ بندگی کرے، تاکہ وہ بندگی کرے. لائکل کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، جس میں معنی آتا ہے تاکہ. جبکہ لام امر اگر ہوگا وہ ہوگا وَلْيَعْبُدُوا، وَلْيَعْبُدُوا میں واو آ گیا پہلے، فا اور وا کی بات ہم نے کی تھی، تو لام جو ہے لام زیر لی کے بجائے اس پہ سکون آ گیا. اس طرح کی کنڈیشن اس کو لام امر کہتے ہیں. اس کا ترجمہ آئے گا اور انہیں بندگی کرنی چاہیے. آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی چھوٹی بات ہمیں لگ رہی مگر ترجمہ کہاں سے کہاں جاتا ہے. اوپر کا ترجمہ ہے تاکہ وہ بندگی کریں، اس میں امید ہے تاکہ، اور دوسرا ہے اور انہیں بندگی کرنی چاہیے، اس میں حکم ہے، یہ امر ہے. اوپر ایک امید ہے، نیچے حکم ہے. اب کتنا فرق ہے اس میں؟ تو یاد رکھیے گا لام کائی اور لام امر میں کیا فرق ہے. لام کائی میں اگر پہلے واو یا فا آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لام کے نیچے زیر برقرار رہتی ہے. لام امر میں وہ زیر ختم ہو جاتی ہے اور واو کے اوپر یا لام فا کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی وہ لام کے ساتھ مل جاتی ہے. ایک دو مثالیں دیں گے، اس کے بعد آج کا درس ختم کریں گے. آپ کے پاس نون ضارا باب نصرہ پہ ڈالیے، بنے گا نظرہ ینظرو، ینظرو کو اخف کیجئے بنے گا ینظر. آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں جو بھی ہمارے پاس سیگے ہیں صرف مضارع سے لے رہا ہوں، کیونکہ ماضی کے کوئی بھی فعل پہ اثر نہیں ہوتا، اخف وغیرہ یہ ماضی پہ نہیں ہوتا. خا لام قاف باب نصرہ پہ ڈالیے، بنے گا خلقہ. یخلقو مجہول کریں گے تو بنے گا فعیلا، خلقہ بنے گا یفعلو، کیونکہ مجہول کا ایک ہی ہمارے پاس ڈائی ہے، وزن ہے، تو یفعلو سے بنے گا یخلقو. اسے پیدا کیا گیا، اسے پیدا کیا جاتا ہے یا جائے گا. سورہ طارق آیت نمبر 5 اور 6 اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرْ. اب دیکھیں یہاں پر فا آ گیا، اصل میں لی تھا مگر یہ لام امر ہے تو فا کے اوپر زبر ہے تو لام نے اپنی زبر کو چھوڑ کے فا کے ساتھ مل گیا، بنے گا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مما خلق. پس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، چاہیے. خلق مما دافق، پیدا کیا گیا اسے ایک اچھلنے والے پانی سے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا یہ ایک طرح سے فعل امر استعمال ہوا ہے، یعنی پس چاہے، مطلب یہ ایک طرح سے حکم دیا گیا کہ اس کو چاہے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا. یہاں پر کوئی امید نہیں بلکہ اس کے حکم دیا گیا ہے. سورہ قریش آیت نمبر 3 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہے کہ وہ بندگی کریں اس گھر کے رب، یعنی اللہ کے گھر کے رب کی، خانہ کعبہ کے رب کی. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ دونوں جگہ جو لام ہے لام امر ہے. آخر میں شین ہا دال باب سین پہ ڈالیے، بنے گا شہیدہ یشہدو پانا. اسی طرح صاد واو میم نون پہ ڈالیے سواما، ساما بنے گا. یسومو، یسومو بنے گا. اخف کیجئے تو یسوم بنے گا. رول ہے ہمارے پاس رول نمبر 19 تو یسوم یسوم میں تبدیل ہو جائے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 آج کے روزوں کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے فمن، پس جو کوئی شہیدہ پائے گا. یہاں پر دیکھیں شہیدہ کوئی فرق نہیں آیا. منکم الشہر، تم میں سے اس شہر کو یعنی اس مہینے کو، فَلْيَصُمْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس کی. یہاں پر دیکھیں فعل امر ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہو گیا. فعل امر کیا بلکہ ہم کہیں گے لا امر ہو، یعنی فعل نہیں ہو گیا، سوری، فعل امر تو نہیں، فعل نہیں ہو گیا کیونکہ اس میں لام نہیں ہے، لائی نہیں ہے. اور یہ لائی نہیں اصل میں لام ہے زیر کے ساتھ، مگر آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے فا آ گیا زبر کے ساتھ، تو لام کی جو زیر ہے وہ ہٹ کے سکون میں تبدیل ہو گئی اور فا لام کے ساتھ مل گیا. تو یہاں پر ترجمہ آئے گا تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو یہاں جو کہا گیا کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہے، یہاں حکم دیا گیا کہ وہ روزہ رکھے. تو روزہ رکھنے کا جو حکم ہے فرضاً، اس سے پہلے آیت میں کہا گیا کہ جو فدیہ دینا چاہے، کیونکہ ابتدائی زمانے میں اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ فدیہ دیتا تھا. مگر اس آیت سے وہ جو حکم ہے وہ ختم ہو گیا کہ نہیں، جو اس مہینے کو پائے اس کو روزہ رکھنا ہی چاہیے.
انہیں حکم دیا گیا کہ اس کو روزہ رکھنا ہے، اور باقی جو بیمار ہے یا سفر میں ہے اس کو روزہ آئندہ دنوں میں پورا کرنا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے مگر روزہ رکھنا ہے۔ یہ جو فل یا سم ہے یہ اصل میں لی یا سم ہو تھا، مگر فا کی وجہ سے لام پہ سکون آئے۔ اتنا کلیئر ہو گیا یہ جو آج میں نے عرض کیا یہ چیزیں؟ جی منیر صاحب بالکل جزاک اللہ خیر۔ تو اسی پہ آج ہم درس اختتام کریں گے، آپ کے یہاں اذان بھی ہو گئی اور یہاں ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔